Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Let's start the discussion of test number 3, that is force and motion. Question number 1. If a body of mass 5 kg free fall from 5-meter height, then its momentum just before hitting the ground. Option alpha 5, beta 25, Charlie 50, delta 100. Momentum का formula हमारे पास है P is equal to mv. We have mass but we don't have velocity here. So first we find velocity. Velocity for freely falling body v is equal to under root 2gh. Freely falling body के लिए velocity का ये formula होता है. Then by putting values, velocity we get 10 meter per second. अब 10 meter per second velocity और 5 kg mass इसको multiply करेंगे, we get momentum which is equal to 50. So best option is Charlie. Now question number 2. If a ball is thrown with velocity 10 meter per second from 5 meter height, then its range will be alpha 50, beta 30, Charlie 20 and delta option is 10. We have to find range. यहाँ पे range का formula होगा x is equal to vx multiply by time. x is range. इस क्वेश्चन में हमारे पास velocity है but time given नहीं है. Time हम find करेंगे height के formula से. h is equal to half gt square. From here we find time. Time is equal to 1 second. फिर हम इस टाइम को पुट करेंगे और वेलोसिटी को पुट करेंगे रेंज के फॉर्मूले में x इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम विच इज इक्वल टू 10 and here the best option is delta. Now moving to question number 3. If a body is thrown from 10-meter height and fall 10 meter away, then its initial velocity will be alpha 3.8 meter per second, beta 7.0 meter per second, Charlie 9.3 meter per second and delta 10.1 per second meter per second. प्रीवियस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया x इज इक्वल टू वी एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम, उसी फॉर्मूले को यहाँ यूज़ करेंगे और वेलोसिटी फाइंड करेंगे. वेलोसिटी v इज इक्वल टू x ओवर t. x इज रेंज. हमारे पास रेंज गिवन है बट हमारे पास टाइम गिवन नहीं है. टाइम को हम फाइंड करेंगे हाइट से. अगेन वही फॉर्मूला h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. यहाँ पे हम टाइम की वैल्यू टाइम फाइंड करेंगे h पुट करके. सो इट विल बिकम t इज इक्वल टू अंडर रूट 2 over 2h over g. Then we get time t is equal to 1.41. By putting time and range we get v is equal to 7 meter per second. Vx is equal to 10 over 1.41 which is equal to 7 meter per second. So correct option is beta. Now question number 4. If a body moves with velocity of 8 meter per second, collides elastically with a target body moving with 4 meter per second. After collision, v of target body becomes 6 meter per second. What will be the v of incident body? यहाँ पे एक इंसिडेंट बॉडी है और यहाँ पे एक टारगेटेड बॉडी है. टारगेटेड बॉडी मूव कर रही है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और जो इंसिडेंट बॉडी है वो 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है. अब इंसिडेंट बॉडी हिट करेगी टारगेटेड बॉडी को. आफ्टर कोलिजन टारगेटेड बॉडी की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी. पहले थी 4 मीटर पर सेकेंड, बाद में हुई 6 मीटर पर सेकेंड. बट इंसिडेंट बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? उसकी प्रीवियसली थी 8 मीटर पर सेकेंड. अब नेक्स्ट फाइंड करनी है. यहाँ पे हमने मोमेंटम वाले फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव किया है जस्ट वेलोसिटी के लिए. v1 प्लस वी वन प्राइम इज इक्वल टू वी टू प्लस वी टू प्राइम. इसमें हमें v1 गिवन है, v2 प्लस वी टू प्राइम भी गिवन है बट v1 प्राइम गिवन नहीं है. वो हमने फाइंड करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है एंड वी गेट आंसर 2. सो बेस्ट ऑप्शन इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 5. अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ 5 meter height tower. Its initial velocity is alpha option is 0, beta 5, Charlie 10 and delta 50. So best option is alpha because freely falling body है वो सडनली ड्रॉप की गई 5 मीटर हाइट के टावर से. तो जब सडनली ड्रॉप करेंगे वो फ्रीली फॉल करेगी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और इसकी एक्सेलरेशन इक्वल होगी ग्रेविटी के. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी of 20 meter per second towards east and its acceleration will be alpha option is 5, beta 10, Charlie 9 and delta option is 0. So यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है. जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन 0 होगी. देन बेस्ट ऑप्शन इज डेल्टा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7.
A missile is fired with a speed of 98 meters per second at 30 degree at an angle of 30 degree with horizontal. The missile in air remains for alpha option 30 seconds, beta option 50 seconds, charlie option 40 seconds and delta option 10 seconds. यहाँ पे हमने एक मिसाइल का टाइम फाइंड करना है, वो कितनी देर तक एयर में रहता है विद द गिवन वेलोसिटी एंड विद द एंगल 30 डिग्री। अगर वो इस एंगल से थ्रो किया गया है और 98 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है तो वो कितनी देर एयर में रहेगा। तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास होता है t इज इक्वल टू 2vi sin थीटा ओवर g। यहाँ पे हम वेलोसिटी पुट करेंगे, एंगल पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 सेकेंड आ जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 8. At which pair of angles the range of projectile would be same? Alpha 30 degree 60 degree, beta 25 degree 65 degree, charlie 15 degree 75 degree and delta all of these. हमें पता है कि दो रेंजेस तब इक्वल होती हैं जब दोनों एंगल्स का सम 90 के इक्वल हो। तो इन तीनों ऑप्शंस में जो भी गिवन वैल्यूज़ है ना, ऑप्शन 1 में भी दोनों वैल्यूज़ का सम इक्वल है 90 की, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन सी में भी। तो डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस इज बेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. A 1500 kg car has its velocity reduced from 20 meter per second to 15 meter per second in 3 seconds. How large was the average retarding force? Alpha 1.5 kN, beta 1 kN, charlie minus 2.5 kN and delta minus 1.5 kN. यहाँ हमें टाइम भी गिवन है, वेलोसिटी भी और मास भी गिवन है, फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम मोमेंटम वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, F मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू MVF माइनस MVI से। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आएगा -2.5 kN, दैट इज चार्ली ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. A particle of mass m moving with velocity v strikes a stationary particle of mass 2m and sticks to it. The speed of system will be alpha option v by 2, beta 2v, charlie v by 3, delta 3v. इसमें वो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वेलोसिटी v है, और वो एक और पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहा है, उसका मास है 2m और उसके साथ स्टिक हो जाता है बाद में। अब कोलिजन के बाद पूरे सिस्टम की स्पीड क्या है, इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे मोमेंटम वाला। इसमें बिफोर कोलिजन एक ही बॉडी का मोमेंटम था जो मूव कर रही थी, तो mv इज इक्वल टू, और आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज़ का मोमेंटम आ जाएगा mv प्लस 2mv। तो यहाँ से v कॉमन ले लेंगे और बाकी फॉर्मूला अरेंज कर लेंगे। इसमें v प्राइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास v by 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इफ स्पीड ऑफ अ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट स्टॉप्स आफ्टर 10 मीटर ऑन अप्लाइंग फोर्स, इफ सेम कार इज मूविंग विद 30 मीटर पर सेकेंड एंड सेम फोर्स इज अप्लाइड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बिफोर इट स्टॉप्स. ऑप्शन 10, बीटा ऑप्शन 90, चार्ली ऑप्शन 70, डेल्टा ऑप्शन 900। इसमें वो कह रहा है कि कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और कुछ आगे जाके 10 मीटर तक जाके वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप कैसे होगी, फोर्स अप्लाई की उस पर भी वो स्टॉप हो गई। सेम कार जो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगी और सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक डिस्टेंस के बाद जाके स्टॉप हो जाएगी। अब वो डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन से हम रिलेशन फाइंड करेंगे, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ से हम रिलेशन फाइंड करेंगे एस का और वी का। डिस्टेंस कवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, सो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। यहाँ हम फॉर्मूला पुट करेंगे S1 ओवर S2 इक्वल्स टू V1 ओवर V2 होल स्क्वायर। यहाँ से हम S2 फाइंड कर लेंगे एंड द बेस्ट ऑप्शन इज 90, बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। Question number 12. Which of the following factors in projectile motion remains constant? Alpha Vx, beta Ax, charlie Ay, delta all. हमें पता है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से लॉन्च करते हैं और उसकी वो वेलोसिटी जस्ट Vx होती है, उसका x कंपोनेंट होता है और वो कांस्टेंट होती है होल ड्यूरिंग द होल जर्नी, और उसका y कंपोनेंट नहीं होता एट द इनिशियल पॉइंट। तो अल्फ़ा ऑप्शन Vx है, Vx कांस्टेंट रहता है। अब जब Vx होल जर्नी में कांस्टेंट रहेगा तो उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, ज़ीरो इज इटसेल्फ अ कांस्टेंट, तो Ax भी कांस्टेंट हो गया। अब चार्ली ऑप्शन है Ay, और हमें पता है कि जब वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो ग्रेविटी की वजह से होता है, और अगर ग्रेविटी कांस्टेंट है
तो ए वाई भी कॉन्स्टेंट, सो ऑप्शन डी इज बेस्ट, दैट इज ऑल. Question number 13. A body is undergoing projectile motion at angle theta is equal to 60 degree with kinetic energy that is 100 joule. What is the kinetic energy of body at maximum height? H maximum. Alpha option 100, beta option 50, Charlie option 25, delta option 0. वो कह रहा है कि बॉडी मूव कर रही है विद एंगल 60 डिग्री. उसको 60 डिग्री एंगल पे लॉन्च किया गया और उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जाउल है. वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी क्या होगी. तो फॉर मैक्सिमम हाइट वी हैव अ फार्मूला, एक स्पेसिफिक फार्मूला है. काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा. ये एट मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला है. तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गिवन है, दैट इज़ 100 जाउल. और कोस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा हमें गिवन है थीटा 60 डिग्री. तो कॉस थीटा, कॉस 60 इज इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर लेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट 25. तो 25 जाउल काइनेटिक एनर्जी होगी एट मैक्सिमम हाइट, ऑप्शन चार्ली. और अगर वो क्वेश्चन में पूछता कि मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा. तो इस फॉर्मूला को भी नोट डाउन कर लें आप. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट इज द एंगल बिटवीन वी एंड जी एट मैक्सिमम हाइट इन प्रोजेक्टाइल मोशन? अल्फा ऑप्शन 30 डिग्री, बीटा ऑप्शन 75 डिग्री, चार्ली ऑप्शन 90 डिग्री एंड डेल्टा ऑप्शन 180 डिग्री. मैक्सिमम हाइट पे ग्रेविटी होती है और v का y कंपोनेंट 0 होता है और x कंपोनेंट होता है. x कंपोनेंट फॉरवर्ड होता है और जो ग्रेविटी होती है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है. तो फॉरवर्ड और डाउनवर्ड को अगर हम ड्रॉ करें देन इट गिव्स 90 डिग्री. तो 90 डिग्री का एंगल बनता है बिटवीन g एंड v का x कंपोनेंट. तो चार्ली ऑप्शन बेस्ट है, 90 डिग्री. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15. इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री with 100 meter per second velocity, then time to reach maximum height will be alpha option 5 seconds, beta option 10 seconds, Charlie option 15 seconds and delta option 20 seconds. वो कह रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया 30 डिग्री के एंगल पे और 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो मैक्सिमम हाइट पे अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हम देखें तो मैक्सिमम हाइट पे जाके वो मैक्सिमम हाइट पे कब रीच करेगी, कितने टाइम में रीच करेगी. टाइम होता है हमें टाइम का फॉर्मूला पता है, t इज इक्वल टू 2 vi साइन थीटा ओवर जी. बट ये जो टाइम का ये फॉर्मूला है वो कंप्लीट जर्नी के लिए है. हमने तो मैक्सिमम हाइट पे जाना है, देन हम इस टाइम के फॉर्मूले को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे. मैक्सिमम हाइट पे अभी हाफ टाइम कवर हुआ होगा, तो हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी गेट फॉर्मूला vi साइन थीटा ओवर जी. तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड टाइम हमारे पास आएगा 5 सेकेंड्स. तो अल्फा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे. Next question, question number 16. A train is moving towards east with velocity v is equal to 10 meter per second. A bird is moving from east to west with velocity 15 meter per second. Time required by bird to cross train. Alpha option 5 seconds, beta option 6 seconds, Charlie option 11 seconds, delta option 19 seconds. अब क्वेश्चन देखें, एक ट्रेन है. इस क्वेश्चन में अनफॉर्चुनेटली लेंथ नहीं लिखी गई ट्रेन की. ट्रेन की लेंथ इस क्वेश्चन में थी 150 मीटर. तो टाइपिंग मिस्टेक से ऐसा हो गया, लेंथ यहाँ पे गिवन होगी ट्रेन की 150 मीटर. क्वेश्चन है कि एक ट्रेन मूव करी है 150 मीटर की टुवर्ड्स ईस्ट और अपोजिट डायरेक्शन से एक बर्ड आ रहा है. ईस्ट से आ रहा है और उसने वेस्ट की तरफ जाना है. हमें पहले यहाँ पर उन्होंने कहा है टाइम फाइंड करें. अब टाइम का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू एस ओवर वी. यहाँ पे हमारे पास एस है यानी ट्रेन की लेंथ 150 मीटर, वेलोसिटी नहीं है. पहले हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे बर्ड और ट्रेन के दरमियान. अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, जब दो चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं तो उन दोनों की सेपरेट वेलोसिटी को ऐड कर लेते हैं. अगर सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो माइनस कर लेते हैं. अब इस क्वेश्चन में बर्ड और ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इनकी सेपरेट वेलोसिटीज़ को हम ऐड कर लेंगे. जब ऐड करेंगे 10 और 5 को तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी 15 और 10 को ऐड करेंगे तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी 25 आ जाएगी. देन हम इसको पुट करेंगे टाइम वाले फॉर्मूले में, देन हमारे पास टाइम आ जाएगा 6 सेकेंड्स. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट.
Now question number 17. If a body covers 3/4 of cycle, 3/4 of circle, then ratio of its distance to displacement is alpha option 11:7, beta option 11:7 under root 2, Charlie option 33:7 into under root 2 और डेल्टा ऑप्शन 4:3। अब उन्होंने कहा है कि एक बॉडी है, हाफ 3/4 उसने एक सर्कल कवर किया हुआ है। अब उसने कहा है कि जो बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसका और उसके डिस्प्लेसमेंट का रेशो फाइंड करें। अब डायग्राम में देखें, डिस्टेंस कवर हो रहा है 3/4 डिस्टेंस होता है एक सर्कल में 3πr और डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे। तो इनिशियल पॉइंट से हम बैकवर्ड आ जाएंगे, जहाँ पे वो स्टॉप हुआ तो ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। बट यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम वेक्टर्स वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, देन हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। यहाँ पे फॉर्मूला आएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू √r² + r²। आर हमने सपोज कर लिया इसका रेडियस है यहाँ पे, और हमें पता है कि जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, √r² + r²। तो हमारे पास आंसर आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगी हमारे पास √2r। अब रेशो निकालना है डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस हमारे पास था 3πr, डिस्टेंस होगा 3πr/2 डिवाइडेड बाय √2r, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22 डिवाइडेड बाय 7, तो उससे हमारा आंसर आएगा 33:7/2। ऑप्शन चार्ली इज बेस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. If body is thrown with velocity v, reach maximum height that is 100 meter. If its velocity becomes 2v, then its maximum height will be alpha option 100, beta option 200, Charlie option 300, delta option 400। इसमें वो कह रहे हैं कि एक बॉडी को जब थ्रो किया गया विद स्पेसिफिक वेलोसिटी v और उसने मैक्सिमम हाइट कवर की 100 मीटर। अब वो उन्होंने वेलोसिटी उस बॉडी की चेंज कर दी है तो वो बन गई 2v। अब वो कह रहे हैं कि अब मैक्सिमम हाइट क्या होगी। हम हाइट वाला फॉर्मूला देखेंगे और उसमें से हाइट और वेलोसिटी का रिलेशन फाइंड करेंगे। हाइट और वेलोसिटी h = vi² sin² θ/2g। तो इसमें हाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। अगर हम हाइट को रिलेट करें v² से, देन हम इसको अप्लाई करेंगे न्यू सिचुएशन पे। v प्राइम बन गया हमारे पास 2v, तो h प्राइम आएगा 2v², दैट इज़ इक्वल टू 4v या 4vi। अब जो वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो रही है तो हाइट भी 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी। तो इनिशियल हाइट 100 थी, उसके बाद जब वेलोसिटी 4 टाइम्स मतलब वेलोसिटी v प्राइम इज इक्वल टू 2v बना, देन हाइट 4 टाइम्स इंक्रीज़ होगी और इनिशियल वैल्यू 100 का 4 टाइम्स करें तो 400 आएगा, दैट इज़ डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19. इफ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच बैक टू अर्थ। एक बॉडी है उसको हम थ्रो करें अपवर्ड और वो अगेन बैकवर्ड नीचे आ रही है। यहाँ पे ऑप्शन गिवन है a = अल्फा = 2.5 सेकेंड्स, बीटा = 5 सेकेंड्स, चार्ली = 7.5 सेकेंड्स एंड डेल्टा ऑप्शन 10 सेकेंड्स। अब जब बॉडी को ऊपर थ्रो करेंगे और वो वापस आएगी तो ये इसको डबल टाइम चाहिए ऊपर जाने में और वापस आने में। तो हम टाइम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। a = v/t, यहाँ से t निकालेंगे साइड पे, t = v/a। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी पुट करेंगे, सो t = v/g एंड यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास टाइम 5 आ जाएगा। देन इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बॉडी ने ऊपर जाने में भी टाइम लिया और वापस बैक टू अर्थ आने में भी टाइम लिया, तो डबल टाइम हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 10। डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। Now question number 20. If a wheel of diameter r is moving such that the point in contact with earth covers half revolution, then its displacement will be alpha option r/√π² + 4, beta option r into √π² + 1, Charlie option
आर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा ऑप्शन 2 बाई आर। अब डायग्राम को देख के क्वेश्चन समझें। हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं एक व्हील है, उसका एक पॉइंट, सपोज हमने डाउनवर्ड पॉइंट लिया, अर्थ के साथ कांटेक्ट में है, इस पॉइंट को हमने कहा ए। फिर उसने हाफ रेवोल्यूशन जब कवर की तो ये जो नीचे पॉइंट उसका था जो अर्थ के साथ कांटेक्ट में था वो ऊपर चला जाएगा हाफ रेवोल्यूशन में। तो जब हाफ रेवोल्यूशन कवर हुई वो पॉइंट ए ऊपर चला गया। अब यहाँ हमने देखना है कि जो ए पॉइंट है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। पहले हम डिस्टेंस देखेंगे, उससे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो पहले वो नीचे था, देन वो जब हाफ रेवोल्यूशन हुई उसने एक तो अर्थ का पाई आर कवर किया, देन जब हाफ रिवॉल्व हुआ तो उसने व्हील का आर यानी कंप्लीट डायमीटर भी कवर किया। तो इसमें हमारे पास डिस्टेंस अगेन वेक्टर्स में आ जाएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, पाई आर विद द अर्थ एंड अलोंग द डायमीटर ऑफ व्हील दैट इज़ आर। तो इसको अगेन हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को वेक्टर एडिशन से फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हम निकाल लेंगे। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू पाई आर है और बी स्क्वायर की वैल्यू आर है डायमीटर के इक्वल। तो इनको